Hello dear students, welcome in Ambition Vedic Coaching Institute. Before we have seen about the angle and its measurement. Now in this video we have to see the next lesson named as trigonometric functions. We know that in previous standard we studied about the 6 trigonometric functions. They are sine, cos, tan, cosec, sec, cot. Okay. Now here see the trigonometric functions. Yeah, here we want to describe the trigonometric functions with the help of standard unit circle. So क्या होता है standard unit circle? Trigonometric functions with the help of standard unit circle. Okay, standard unit circle. अब ये standard trigonometric functions with the help of standard unit circle. So what does mean by standard unit circle? A circle with center point at origin and radius 1 unit is called as standard unit circle. यानी जहाँ पे आपका सेंटर पॉइंट ओरिजिन होता है, देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एंड यू नो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट ओरिजिन. सो यहाँ पे अपने को एक सर्कल निकालना है जिसका सेंटर पॉइंट ओरिजिन होना चाहिए और रेडियस कितना होना चाहिए 1 यूनिट. तो इस तरह से रफली मैं यहाँ पे एक सर्कल निकालता हूँ इस तरह से. तो ये है आपका सर्कल. ओके, तो ये है आपका सर्कल. तो इस तरह से एक सर्कल है जिसका सेंटर पॉइंट ओरिजिन है और आपका जो रेडियस है वह है 1 यूनिट. एंड स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल इट मीन्स जहाँ पे आपका सेंटर पॉइंट जो है ये ओरिजिन होता है और रेडियस जो है वो होता है 1 यूनिट, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल. अब इस स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल में अपने को एक पॉइंट लेना है एंड लेट p x, y be any point, okay, taken on the unit circle with measure of angle x o p. अब इसको ज्वाइन कर दो इस तरह से. तो मेजर ऑफ एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू थीटा. Okay, so first of all draw the what standard unit circle in the xy plane or in Cartesian plane. Standard unit circle it means whose center point is origin and radius is what 1 unit, called as a standard unit circle. Then you know, take a point P on the circumference of this standard unit circle. So here I taken the point P on this standard unit circle such that the measure of angle AOP is equal to theta. एंड इस स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल के ऊपर एक पॉइंट लेना है P और इस तरह से लेना है कि आपका जो एंगल है, ठीक है, वो कितना होना चाहिए, थीटा होना चाहिए. एंड मेजर ऑफ एंगल AOP इज इक्वल टू हाउ मच, थीटा. ओके, अब यू नो O is your center point. So distance from center point to the circumference called as radius, and here radius is 1 unit. So the length of OP is equal to 1 unit. Okay, then you know, here draw the perpendicular from the point P on the x-axis. May draw the line segment P, draw the line segment from point P on the x-axis which is perpendicular at point M. So in this way here we got one right angle triangle, and a triangle OMP is a right angled triangle.
Okay, at which point? At point M. So in this right angle triangle, we know the length of OP, whereas the OM is X and PM is Y. So here we can use the what? Right angle triangle. And ये जो आपका ट्राइंगल है OMP ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है. तो राइट एंगल ट्राइंगल में अपन पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं. क्या है आपका पाइथागोरस थ्योरम? तो लेंथ ऑफ OP स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर. OP is 1 unit, so 1 square. OM is X square and PM is Y square. So in this way X square plus Y square is equal to 1. ठीक है. यानी ये जो आपका राइट एंगल ट्राइंगल है इसमें आपको OP का लेंथ पता है, OM पता है और PM पता है. यानी इसमें तीनों साइड्स का लेंथ पता है. सो बाय पाइथागोरस थ्योरम we get x square plus y square is equal to 1. Then you know we define the trigonometric functions. We define the what? Trigonometric functions. तो इस ये जो डायग्राम है इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ और यहाँ पे एक छोटा सा इस तरह से एक डायग्राम निकालता हूँ. ठीक है, ये है आपका P, X, Y और ये PM. ठीक है, तो ये है आपका राइट एंगल ट्राइंगल OMP. अब इस राइट एंगल ट्राइंगल OMP में अपन ने पाइथागोरस थ्योरम यूज किए या अप्लाई किए तो अपने को ये चीज मिला x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1. देन वी डिफाइन दी व्हाट? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. एंड अपन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालते हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल में किस एंगल के लिए निकालते हैं अपन? अक्यूट एंगल थीटा के लिए. तो एग्जैक्टली यहाँ पे इस अक्यूट एंगल थीटा के लिए क्या निकालना है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना है. तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम साइन थीटा. अगर साइन के लिए अपने को रेशियो निकालना है तो जैसा कि आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़े हैं, क्या फार्मूला है? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस. एंड इस अक्यूट एंगल थीटा का अपोजिट साइड क्या है? PM अपॉन OP. यानी PM कितना है? Y, OP कितना है? 1. तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1. सिमिलरली कॉस थीटा इज इक्वल टू, अब कॉस के लिए रेशियो निकालना है तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी OM अपॉन OP यानी x अपॉन 1 इज इक्वल टू x. देन फाइंड tan थीटा. सो tan के लिए अगर रेशियो निकालना है तो क्या फार्मूला है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट यानी इस अक्यूट एंगल थीटा के लिए निकालना है. सो PM अपॉन OM यानी y बाय x. ओके, सो साइन थीटा इज इक्वल टू y, कॉस थीटा इज इक्वल टू x एंड tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट? y बाय x. सो इन दिस वे here we got the ratios for sin, cos, tan in standard unit circle. एंड ये जो आपका स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल है इस स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल के लिए अपन ने साइन कॉस टैन का क्या निकाले? अपन ने रेशियो निकाले. ठीक है, सी वंस अगेन द स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल इट मींस हुज सेंटर पॉइंट इज ओरिजिन एंड रेडियस इज 1 यूनिट कॉल्ड एज स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल. सो फॉर दिस स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल हियर वी इट मींस फाउंड आउट या हियर वी डिटरमाइंड द व्हाट? रेशियो फॉर साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टैन थीटा. सो रिमेंबर दिस वन. Then see for cosec, sec and cot. So the sin का जो रेसिप्रोकल है वो कोसेक है. So cosec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा. ओके, साइन थीटा कितना है? y. So cosec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन y. cos का रेसिप्रोकल क्या है? sec. So sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा. राइट, अब cos का रेशियो क्या है इसमें? x. cos का वैल्यू क्या है? x. सो सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन x. ठीक है, उसके बाद आता है कॉट. तो मैं भी इसको मिटा देता हूं यहाँ पे. सो कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टैन थीटा, है ना. साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक और टैन का रेसिप्रोकल व्हाट? कॉट. सो कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टैन थीटा. टैन थीटा का वैल्यू क्या